దీనికి తెలుగురా చెప్పి నేను అర్థం కాదు. Now I request the Lagu Bharati team, Mr. Sharan, Mr. Vidyasagar, Mr. Malik, kindly come on the dance and on behalf of Lagu Bharati to welcome our guests. There are many who wanted to felicitate our minister after the program. We would have thanked and the passage of time is there. Without wasting much time, I would like to say a few words with regard to this program today. Thank you. So we have ample of time to interact on the interaction, and our president will also speak on that. Lagu Udyog Bharati is an organization which deals with small scale industries and their associations, their contribution to the society and nation. And today, with their association, we are able to conduct this meeting, which is soon after the budget was presented in the Parliament. Our young and dynamic Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Mr. Anurag Thakur, and Srimati Nirmala Sitharaman have really presented us, gave us a beautiful budget. We all know, friends, that today we are facing a crisis throughout the world because of the COVID-19 situation. There was an economic recession even before the COVID-19, and soon after the COVID-19 situation, while we were recovering, still the budget had to be presented. And I think, as Nirmala Sitharaman said, that it was quite a difficult task to present the budget, which should not be a burden on the people of this country. And I feel that today's budget, which has been presented by the Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman and her colleague, the budget is one of the best budget, beautiful budget, which is not a burden on the common man. As Narendra Modi rightly said, there are two types of budget. One is budget for nation and development, and another budget is for elections, for vote budget. And definitely I feel this is not a vote budget, it is a budget for the development of the nation and for the development of the country, and for the development of the people. Without any extra burden on the people of this country, we are facing the situation, COVID situation, boldly while the world is still struggling. I am sure that the guidance of Mr. Narendra Modi and Srimati Nirmala Sitharaman and Anurag Thakur, this country will again come back to the normalcy of economic activity, and our economic GDP will grow, our growth rate will definitely grow, and we will compete with other neighboring countries and other countries in the world. I now request all of the guests here to kindly switch off your phone or keep it in vibration mode, because when the guest speaks, there will be silence in the hall. And before our chief guest speaks, I request Mr. Pandit Sanjay Garu to kindly say a few words on this occasion. అందరికీ నమస్కారం. నేటి ఈ కార్యక్రమానికి పనిచేస్తున్నటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు, ఎమ్మెల్సీ, మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో, మీ అందరి సహకారంతో తిరిగి మన ఎమ్మెల్సీ కాబోతున్నటువంటి రామచంద్రరావు గారు, అదేవిధంగా నేటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు యంగ్ అండ్ డైనమిక్ మినిస్టర్. నిజంగా వారి గురించి వారి ముందు చెప్పకపోతున్నాను కాదు. ఏదైతే
విషయంలో ఏ సమస్య మీద వారిని పార్లమెంట్ హౌస్ లో కలిసినప్పుడు కూడా హౌస్ బయట కలిసినప్పుడు కూడా మన బాధను అర్థం చేసుకొని మన లోపల భరోసా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించిన గొప్ప వ్యక్తి అన్నా సింగ్ ఠాకూర్ గారు. సమస్యలు వెళ్ళినప్పుడు వారు స్పందించిన తీరు సంజయంగా చాలా అద్భుతం అనిపిస్తుంది. మరి కేంద్ర హోంశాఖ కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రులు శ్రీ అన్నా సింగ్ ఠాకూర్ గారు, అదేవిధంగా మా అందరి ప్రియతమ నాయకులు, సీనియర్ నాయకులు, ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు, గౌరవ పెద్దలు శ్రీ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, లఘు ఉద్యోగ్ భారత్ అధ్యక్షులు శ్రీ విద్యాసాగర్ గారు, ఈ కార్యక్రమం చేసినటువంటి మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. బడ్జెట్ విషయంలో వారు ముఖ్య అతిథి వచ్చిన అనేక విషయాలు స్పష్టం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే రామచంద్ర గారు మనం కూడా చెప్పండి. ఈరోజు అందరూ కలిసి ప్రపంచం అంతా కూడా కరోనా మహమ్మారితో పూర్తి ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలమైన సందర్భంలో పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, ధనిక దేశాలను చెప్పినటువంటి కంట్రీస్ కూడా పూర్తిగా ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిని కోరుకోలేని పరిస్థితున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మన ప్రియతమ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని ఈ ప్రభుత్వం, శ్రీ నిర్మలా సీతారామన్ గారు, వారితో పాటు ఈ బడ్జెట్ రూపకల్పనలో ప్రధాన భూమిక పోసినటువంటి శ్రీ అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ గారి యొక్క కృషి వల్ల ఒక సాహసోపేతంగా ఒక అద్భుతమైన బడ్జెట్ ఈరోజు మన ముందు ఉండడం జరిగింది. సరే, రాజకీయంగా అనేక పార్టీలు దేశవ్యాప్తంగా విమర్శలు ప్రతిమర్శ సమస్య సర్వసాధారణం. ఎంత మంచి బడ్జెట్ పడి రాజకీయ విమర్శ చేయాల్సిన కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. బట్ అందుకే ఈ వాస్తవ విషయం ప్రజలకు వివరించడం ఉద్దేశిస్తున్నారు. వాస్తవం ప్రజలకు వివరించడం ఉద్దేశిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు కేంద్ర మంత్రులు అన్ని రాష్ట్రాలు పర్యటిస్తూ ప్రజలకు వాస్తవ విషయాలు తీయాలని తెలుసుకొని ఈ కార్యక్రమం దానిలో భాగంగానే మీలాంటి మేధావులతో చర్చించడం, మీ సూచన సలహాలు తీసుకోవడం, దాని ద్వారా మార్పులు చేరుకోవడంతో పాటు రాబోయే రోజులు ఏ విధంగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా బడ్జెట్ ఇంకా శక్తివంతంగా రూపకల్పించాలని ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాము. ఇవాళ కేంద్రము ఇంత బడ్జెట్ విమర్శ వస్తుంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కాబట్టి ఒక విషయం చెప్పి ముగిస్తారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి చాలా విమర్శ వస్తుంది. నాకు తెలిసి కేసీఆర్ అంటే ఏం మాట్లాడలేదు, కేసీఆర్ గారి మాటలు హరీశ్వర్ ఏం మాట్లాడలేదు. నాకు ఏమర్థమైందంటే బడ్జెట్ చాలా బాగుంది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అని చెప్పి వాళ్ళు సంతోషపడుతున్నా అర్థమైంది. విమర్శ కనీసం రాలేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీతో విమర్శ చేయలేదు, కానీ అక్కడక్కడ ఇద్దరితో విమర్శ చేసుకోవాలన్నారు. వాళ్ళ కేంద్రం రాష్ట్రానికి ఏమిచ్చిందో పూర్తి వివరాలు నిన్న కూడా అనేక సందర్భాలు స్పష్టం చేయడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఇతర పార్టీ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో సంక్షేమ పేరుతో పూర్తిగా అభివృద్ధిని విస్మరిస్తున్న పరిస్థితులను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. సంక్షేమం కోసం చేసి ఇవ్వలేదు. సంక్షేమ పేరుతో ఓట్ల కోసం, సీట్ల కోసం, అధికారం కోసం, అధికారం కాపాడడం కోసం, అధికారం తిరిగి చేపట్టడం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలను మేధావులుగా అందరూ గుర్తించాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఇటువంటి సందర్భంలో రాష్ట్రంలో సమస్యలప్పుడు, ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మేధావి వర్గము నోరు మెరగ కూర్చుంటే అర్హత తెలియని ప్రమాదం. వీళ్ళకి కేంద్రం నిలుస్తుంది కాదు, వాళ్ళ రాష్ట్రము అధోగతి పోవడానికి భాగమైన కారణం మనం ఆలోచించాల్సిన ధనిక రాష్ట్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రం. ధనిక రాష్ట్రం చెప్పుకున్నాం మనం. ధనిక రాష్ట్రాన్ని అలా అప్పుల రాష్ట్రంగా దేని వల్ల జరిగిన అర్థం చేసుకోవాల్సి. ఇక కేంద్రం ప్రతి సంక్షేమం తెలుస్తుంది, కానీ పేర్లు మార్చి, ఫోటోలు మార్చి వారి పథకం చిత్రీకరించడం, పేర్ల కోసం తాపత్రయపడడం, కేంద్రం ఇచ్చిన దారి మార్చడం, మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వకపోవడం, ఇట్లా అనేక సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనను తెలంగాణ రాష్ట్రం డబుల్ బెడ్రూమ్ మారుస్తా ఉన్నది. కేంద్రం ఇచ్చే అమృత్ నిధులను మిషన్ భగీరథ పేరుతో మారుస్తా ఉన్నది. కంపా నిధులను హరితారం పేరుతో మారుస్తా ఉన్నది. స్మార్ట్ సిటీలకు మ్యాచింగ్ నటిస్తలేదు. రైల్వేకి సంబంధించి ప్రత్యేక లైన్లు నిర్మించినప్పుడు కూడా, అభివృద్ధి చేసినప్పుడు కూడా
ఇవాళ స్థలాలను సేకరించడంలో స్థలాపేక్షణ నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఉన్నది. ఇట్లా ప్రతి దాంట్లో కూడా ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ వంతు పోషించిన పాత్ర పోషించకపోవడం వలన ఈరోజు పూర్తిగా అభివృద్ధి కుంటుపడము, అనుకున్న సంక్షేమ పథకాలు కూడా లబ్ధిదారులకు చేరకుండా ఉండడం వలన, నిధులను దాడి మర్చడం వలన, నిధులు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ లాంటి ఇతర నిధులు ఇవ్వకపోవడం వలన, ప్రభుత్వం తన పాత్ర పోషించకపోవడం వలన వాళ్ళ కేంద్రం ఏదైతే ఆశిస్తుందో, శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు ఏదైతే ఆలోచనతో ఇటువంటి బడ్జెట్ రూపకల్పన చేస్తారో దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న విషయాన్ని మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ 2020-2021లో ఏ విధంగా మనం బడ్జెట్కి నిధులు కేటాయిస్తామో దాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకొని ఇంకా అదనంగా ఖర్చు చేసిన విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించడం వేరు, కనీసం దాన్ని వినియోగించుకునే పరిస్థితి లేదు, కేవలం అంకెల గారిని మాత్రమే. ఇంత కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా పూర్తిగా ఆ బడ్జెట్ నిధులను వినియోగించుకునే దేశం భారతదేశం. ఇక్కడ అటువంటి మంచి ఆలోచనతో మోడీ గారి నేతృత్వంలో భారతీయ జనతా ప్రభుత్వం వల్ల ముందుకు వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళ ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు. ఆత్మనిర్భర భారత్ పెరిగిన ఎంఎస్ఎంఈకి 7 లక్షల కోట్ల నిధులను సమకూర్చడం ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీ. చిన్న తరహా పరిశ్రమ ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పి ఆలోచనతో వీటిని ప్రోత్సహించిన ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా ప్రభుత్వం. అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ గారు కోవిడ్ సందర్భంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడారు. అప్పుడు ఇచ్చిన సూచనలను స్వీకరించి దానికి అనుగుణంగా ఇవాళ బడ్జెట్లో వారు దాన్ని ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి వాడు 7 లక్షల కోట్ల రూపాయలని వాళ్ళ నిధులను సమకూర్చే ప్రయత్నం వారు చేసింది వాళ్ళు. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి విమర్శలు కాకుండా వాళ్ళ వాస్తవాలను గ్రహించి సరే ఇబ్బందులు వస్తే సూచనలు సలహాలు ఇచ్చి ఏ విధంగా రాబోయేలో ముందుకోవాలని చెప్పి ఆలోచనతో ముందుకు ఉండాలి తప్ప దీన్ని రాజకీయ కోణంతో చూడడం కానీ వేరే రకంగా అధికారం కోసం కానీ అధికారం కాపాడడం కోసం కానీ ఓట్ల కోసం కానీ చూసే ప్రయత్నం చేస్తే ఇది ప్రజలందరికీ ఇబ్బంది, పేద ప్రజలకు ఇబ్బంది, దీని ద్వారా రాష్ట్రానికి ఇబ్బంది అటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా మీరందరి సహకారంతో మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో అలా మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఒక శక్తివంతమైన భారతదేశ నిర్మాణం కోసం ఏ విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నామో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అలా బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పన్నారు. కానీ బంగారు తెలంగాణలో భవిష్యత్తు లేకుండా యువకులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేది వాళ్ళు. అందుకే మంచి భవిష్యత్తు గల తెలంగాణ కోసం, ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం, శక్తివంతమైన తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్న కృషి మీ అందరికీ తెలుసు. ఎక్కడ దేనికి భయపడకుండా అవినీతిని వ్యతిరేకిస్తూ, కుటుంబ పాలనను వ్యతిరేకిస్తూ వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీ పేద ప్రజల కోసం వాళ్ళకి చేస్తున్నటువంటి కృషి ప్రయత్నం మీ అందరికీ తెలుసు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీ అందరి సహాయ సహకారాలు ఇదే విధంగా ఉండాలని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ పూర్తిగా మీరు ఇచ్చే సూచన సలహాలను తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పకుండా పాటిస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఒక మంచి బడ్జెట్ ఇంకా శక్తివంతంగా ముందుగా ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరికీ నమస్కారం, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు బండిశెట్టి గారు. ఈరోజు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ కూడా ఈ బడ్జెట్లో ఒక భాగమే. ఈ యొక్క బడ్జెట్ దేశ బడ్జెట్ కాబట్టి దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు అందరి ప్రజలకు ఈ బడ్జెట్ ఆమోదపడుతుంది. కాబట్టి మాకు ఇవ్వలేదని రాజకీయం మాత్రమే మేము చెప్పడం జరిగింది. అది మమ్మాటికి వాస్తవం. నౌ I request our today's chief guest, Sri Amraj Singh Thakur ji, to kindly speak on this topic of Atmanirbhar Bharat and Budget 2021. Ramchandra ji has spoken in English, Bandi Sanjay Kumar ji has spoken in Telugu, so I think I'll prefer to speak in Hindi after this. लोकसभा में मेरे सहयोगी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भाई बंदी संजय कुमार जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण जी, एमएलसी और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भी आदरणीय
रामचंद्र राव जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष आदरणीय विद्यासागर जी, पूर्व में मेरे साथ लोकसभा में सांसद रहे विवेक जी, पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से आए हुए सभी उद्योग जगत के मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, बहुत कम समय था, केवल एक दिन का समय मिला, लेकिन उस एक दिन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने और लघु उद्योग भारती ने मिलकर ये शानदार कार्यक्रम करवाया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मित्रों, पिछले साल लगभग इसी महीने जब बजट दिया था तो उसका साइज लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन किसी ने समझा भी नहीं था कि क्या चुनौतियां हम सबके सामने होंगी। बजट की ब्रेक के बाद जब बजट सेशन का दूसरा हाफ शुरू होगा तो क्या कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हो जाएगा, क्योंकि चर्चा दुनिया भर में शुरू हो गई थी दिसंबर 19 से कि चाइना में केसेस हुए, जनवरी तक दुनिया के अलग देशों में केसेस होने शुरू हो गए थे, लेकिन एक असमंजस की परिस्थिति थी, कोई सोचता नहीं था कि क्या होने वाला है। और मुझे आज भी याद है, पिछले साल बजट देने के बाद देश के कई हिस्सों में जब हम बजट पर चर्चा करने गए तो दूसरे हाथ में किसने सोचा था कि लॉकडाउन भी होगा। हमने कभी अपने जीवन में सुना भी नहीं था। मैं जब पंजाब में रहता था तब तो कर्फ्यू लगता था तो आतंकवाद के कारण लगता था, टेररिस्ट एक्टिविटीज के कारण लगता था, लेकिन किसी बीमारी के कारण कई महीने तक देश बंद रहे, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने थी, लेकिन इस चुनौती के समय भी भारत का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महापुरुष कर रहा था जिसने दुनिया भर के देशों के मुकाबले भारत को सही दिशा पर लेकर गए। और आज हम कह सकते हैं दुनिया भर के देशों में अगर सबसे कम मृत्यु जिन देशों में हुई उनमें से एक हमारा भारत भी है। और उसका बड़ा कारण क्या है? मोदी जी ने तो कहा कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी कीजिए, हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से साफ करते रहिए, लेकिन 138 करोड़ के देश में क्या ये अनुशासन रखना क्या संभव था? लेकिन आप लोगों ने सहयोग किया, राज्य की सरकारों ने सहयोग किया, तो कोविड को हराएंगे और भारत को जिताएंगे, इसको भी हमने सफलता प्राप्त की है। लेकिन इस महामारी के समय दुनिया के देश क्या कर रहे थे? जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी उनमें भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मीडिया में फिर वो नाम ही चलते हैं कि फलाने देश के बारे में ये कहा, जिनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके यहां पर भी उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और वहां पर भी हिंदुस्तान के डॉक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, जो हमारे एनआरआईज हैं। कुछ इकोनॉमीज ने ये कहा, जो उनके देश की सरकारों ने, कि क्या देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है कि देश के लोगों की जान को बचाना है। कुछ लोगों ने अपने देश में तय किया कि युवाओं को बचाना है कि बुजुर्गों को बचाना है, प्राथमिकता किसको देनी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, जान है तो जहान है। हर हिंदुस्तानी की जान बचाने का संकल्प लेकर हम चले, और वहीं से रास्ता निकला जब हमने 15,000 करोड़ रुपया सबसे पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया, हर राज्य को पैसे दिए। आप कल्पना कीजिए, मार्च 24 को, 24 मार्च 2020 को भारत में केवल एक लैब थी जो टेस्ट कर सकती थी। एक भी कंपनी नहीं थी जो पीपी किट्स मैन्युफैक्चरिंग करती हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखाया। आज हम 12 लाख टेस्ट एक दिन में कर सकते हैं,
और पीपी किट्स की मैन्युफैक्चरिंग देश के लिए नहीं, हम दुनिया भर के देशों को पीपी किट्स आज की डेट में सप्लाई कर रहे हैं। दवाइयां देने का काम हमने किया, पीपी किट्स देने का काम भी किया, और दुनिया भर के गिने चुने देश जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई, उनमें हमारा भारत है जिसने 2 बनाई और दुनिया के 100 देशों तक पहुंचाने का काम किया, तो हमारे हिंदुस्तान ने करने का काम किया। मैं बजट पर चर्चा करने से पहले इन बातों पर उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि हम किस अंधकार में जाने के रास्ते पर थे। दुनिया के सामने चुनौती थी, आपदा थी, लेकिन आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। प्राइम मिनिस्टर वेरी clearly mentioned that we have to look for opportunities in adversity as well. And that is why India is standing back on its feet. The economy is seeing the V-shaped recovery. And that is why in the last 4 months, we have seen a GST collection of more than 1 lakh crore rupees per month. And in the month of January, the total this budget, media talked about COVID vaccine tax, your COVID tax. Somebody said rich tax, somebody said even middle class has to pay something, because last year the government of India took a loan of a debt of close to 12.5 lakh crore rupees. क्या आप कल्पना कर सकते हैं, देश को 7 लाख करोड़ का कर्जा लेना था, लेकिन पिछले साल 12.5 लाख करोड़ रुपए का, पिछले साल में इसी वित्तीय वर्ष में 12.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बजट बनाने लगे तो मोदी जी ने बुलाकर कहा कि एक बात का ध्यान रखना, देश के लोग महामारी के दौर में से गुजर कर जा रहे हैं, व्यापार जगत को वापस अपने पांव पर खड़ा होना है, आम आदमी की हमें पहले भी मदद की, आज भी करनी है, कोई नया टैक्स नहीं लगना चाहिए। और हमने सुनिश्चित किया इस बार के बजट में कोई नया टैक्स जनता पर नहीं थोपा गया है, 1 रुपए का भी नया टैक्स नहीं लगाया। नहीं तो तरह तरह की चर्चा चल रही थी, ये टैक्स आएगा, वो टैक्स आएगा, कोई टैक्स नहीं लगाया। और दुनिया भर के देशों में केवल भारत एक ऐसा देश है जिसने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, चना देने का काम किया, तो मोदी सरकार ने किया। 30 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया कैश जमा करवाया। 3 करोड़ विधवा, वृद्ध, दिव्यांग, स्पेशली एबल्ड, विडोज एंड ओल्ड एज, they got 3,000 crore rupees in those first 3 months. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा करवाया। And in this budget, we have made a provision of 65,000 crore rupees under the PM Kisan Samman Nidhi for the betterment of the farmers. We have also made a budgetary allocation of close to 10,000 crore rupees for the micro irrigation facilities. The MSP which has been paid, or the total budget which has been spent by the government of India over last 5 years, from 2014 to 19, if you compare it with the UPA time, UPA spent close to 3,75,000 crore rupees on the purchase of food grains, whereas the Modi government spent more than 8 lakh crore rupees in 5 years span, which is 2.5 times more than the UPA regime. हमने किसान की फसल खरीदने के लिए भी 2.5 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया। किसान को 1,10,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि से भी दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए तो 70,000 करोड़ रुपया मुआवजे का भी किसान को मिला। एमएसपी खरीद कितनी हुई? 43%, 43% दाम ज्यादा बढ़ाए गए गेहूं और धान के। 73% गेहूं ज्यादा खरीदा गया, 114% धान ज्यादा खरीदा गया।
I mean, we have paid more. There was increase as far as the procurement is concerned and price also. We have added 1,000 mandis last year with the ENAM facility. We have made a provision of 1,000 more mandis this year to be added with the e-Bazaar, or you can say e-National Agriculture Marketplace. ये सब करने के बावजूद भी छवि ये बनाई जाती है कि मोदी सरकार 3 कानून जो लेकर आई, तो विपक्ष ये कहता और किसानों को भ्रमित करने का काम करता है कि ये तीनों कानून किसान के खिलाफ है। मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अगर लागू की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू की। किसान की उपज जो है, जो फसल है, उसका दाम कैसे तय होगा? लागत प्लस 50% मुनाफा, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ स्वामीनाथन कमेटी। वी हैव इंप्लीमेंटेड दैट। No government had the guts in the past to implement that report, but we did so. इतने कदम उठाने के बाद भी, नए कानून लाने के बाद भी ये गुमराह किया जाता है। ये कहा जाता है कि एमएसपी बंद हो जाएगी। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगी। हमने एमएसपी पे दाम ज्यादा खर्च किया है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उसके लिए पैसों का प्रावधान अलग से किया, हजारों करोड़ रुपए का। ग्रामीण क्षेत्र में पैसा ज्यादा खर्च हो तो रूरल बजट को हमने 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया। किसान को इस साल बैंकों से पैसा ज्यादा मिले, 10% की वृद्धि हमने उसमें की है। पिछले साल 15,000 करोड़ था, इस साल हमने 16.5 लाख करोड़, पिछले साल 15 लाख करोड़ था, इस साल हमने 16.5 लाख करोड़ रुपया उसको किया है। सुलभ ऋण योजना जो है किसान के लिए हमारी सरकार लेकर आई। अधिकतर भाजपा की सरकारें अलग से सब्सिडी इंटरेस्ट पर भी देती है। कुल मिलाकर किसानों की बात की जाए, हमने वो भी की। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 10 लाख रुपए मिलता था, हमने उसको 20 लाख कर दिया। कोई गारंटी नहीं देनी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो हमने केवल तेलंगाना जैसे राज्य में दिया। जनधन योजना खाते खोल के उनमें पैसा अलग से जमा करवाया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 51.65% बजटरी एलोकेशन हमने ज्यादा की है क्रॉस मिनिस्ट्री, यानी कि 83,000 करोड़ मिलता था, आज 1,26,000 करोड़ रुपया मिलेगा। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में हमने 28% एलोकेशन ज्यादा की है। गांव में मजदूर ज्यादा काम कर सकें, किसान को और पैसा मिल सके, मनरेगा की एलोकेशन हमने 73,000 करोड़ रुपया इस साल की है, जो पिछले साल के 61,000 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपया ज्यादा, 20% एलोकेशन ज्यादा। ट्राइबल एरियाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, 38,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया कि 750 स्कूल नए खुले। 100 सैनिक स्कूल खोलने के लिए हमने प्रावधान किया। आदर्श विद्यालय बने, उसके लिए पैसे अलग से हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 15,000 स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 30 साल से नहीं बनी थी, हम लोगों ने बनाकर लाए, सभी वर्गों से बातचीत करके लेकर आए। आप कोई क्षेत्र चुनिए जिसमें मोदी सरकार ने काम ना किया। व्यापारी वर्ग से मैं जब मिलता था, जब मैं 2019 में मंत्री बना, तो मुझे और निर्मला जी को बुलाकर मोदी जी ने कहा कि देखो, व्यापारी को जो तंग करते हैं टैक्स टेररिज्म, तुम्हें उसको भी खत्म करना है, और जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो बेनिफिट देने चाहिए ताकि हमारे देश के नौजवानों की प्रतिभा दुनिया भर में देखने को मिले, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बने। हमने पहले साल ही जितनी स्टार्टअप्स की मांग थी हमने वो भी पूरी की। इस साल भी जो स्टार्टअप्स को चाहिए, हमने इस बार फिर वो घोषणा 1 साल के लिए, उनके लिए हमने और उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया बेनिफिट्स को। इनकम टैक्स का अधिकारी आपको आकर तंग ना करे। फेसलेस असेसमेंट हम लोग लेकर आए और फेसलेस अपील भी कर दिया। आप यहां पर अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे
तो हो सकता है हैदराबाद में भरते हो, लेकिन देश के किसी और कोने में आपका वहां पर जाकर उसकी असेसमेंट हो रही हो। और इसमें भी हमने कोशिश की है कि सैंपल जो पहले उठाए हैं केसेस, उस पर अगर कोई कमियां आती तो उसको देख के उसमें भी सुधार किया जाए। फेसलेस अपील चालू कर दिया, और इस बार तो हम फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी लेकर आपके लिए आए हैं। अगर आपकी 50 लाख रुपए तक की आमदन और आपका 10 लाख तक का केस है टैक्स का, तो भी आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में जा सकते हो, आप उसमें खत्म कर सकते हो। विवाद से विश्वास की स्कीम हमने आपके लिए 28 फरवरी तक और आगे बढ़ा दी कि किसी के पुराने मुकदमे अगर इनकम टैक्स के तो आप वो खत्म कर सकते हो। अब तक लगभग 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उसमें केसेस लोगों ने अपने खत्म कर दिए, उसमें टैक्स कलेक्शन इतनी हो जाएगी। यानी कि लोगों को कितने लाख करोड़ का रिलीफ मिला वो अलग है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे लगातार अपनी ओर से प्राथमिकता से चलने जा रहे हैं। अगर केवल रेवेन्यू साइड पे ही मैं आपसे बात करूं तो फेसलेस एपेलेट ट्रिब्यूनल भी हम लोग इनकम टैक्स में लेकर आ रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर, क्योंकि हैदराबाद जैसे शहर में, हैदराबाद, सिकंदराबाद और बड़े शहरों में तो और भी जरूरत है मध्यम वर्ग के परिवारों की, लो इनकम ग्रुप की, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी जो 1.5 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिलती थी, हमने उसको भी 1 साल तक के लिए और बढ़ा दिया है ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अपने घर की खरीदारी कर सकें। इसके अलावा जो आपको सप्लाई होती थी अफोर्डेबल हाउसेस की, जो बिल्डर्स बनाते थे, उनको भी इसमें बेनिफिट मिलता था क्लेमिंग इनकम टैक्स हॉलीडे का, हमने उसको भी 1 साल और तक के लिए बढ़ा दिया ताकि और बिल्डर्स अफोर्डेबल हाउस बनाकर लोगों को दे सकें। इसके अलावा जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम है, उसके लिए भी हम एक नई योजना लेकर आ रहे हैं ताकि उसमें भी ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के लिए और जो उद्योग जगत है उसको भी ऐसा लाभ मिले कि वो अपने कर्मचारियों के लिए अच्छी रहने की व्यवस्था कर सके। फिर जो लोग डिजिटल पेमेंट्स 95% से ज्यादा करते हैं, उनको ऑडिट से बाहर रखा जाए, वो भी हम प्रावधान इसमें लेकर आए हैं। स्टार्टअप्स का मैंने आपको बता ही दिया है। एनआरआईज के लिए भी, हैदराबाद से तो बहुत ज्यादा आपके तेलंगाना रीजन से एनआरआईज हैं, उनके लिए भी हमने अलग अलग योजनाएं लेकर आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि मैं देश भर की कंपनीज में देखता था, तो बड़ी बड़ी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, डेवलपमेंट में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से आती थी। अब उनके लिए भी अगर फंडिंग की बात हो या किसी और को बड़ा प्रोजेक्ट करना हो, तो लॉन्ग टर्म फंडिंग अवेलेबल नहीं होती थी। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी हम बनाने जा रहे हैं और 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उसके लिए किया है। ये सरकारी सेक्टर में जो बनेगा उसके 20,000 करोड़ हम रख रहे हैं, 5 लाख करोड़ वो मार्केट में से रेस करेगा और आपके लिए लेंडिंग का प्रावधान भी होगा उसमें। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी डीएफआई हो सकती है, इससे भी आपको बल मिलेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 12 में से 2 को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं ताकि उनकी क्षमता और बढ़ सके। एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं ताकि उसकी क्षमता बढ़ सके और लोग उसमें ज्यादा। एफडीआई हमने इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से बढ़ाकर 74% कर दी ताकि और निवेश आए और ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। 1,75,000 करोड़ का टारगेट हमने डिसइन्वेस्टमेंट का रखा है ताकि और कंपनीज को डिसइन्वेस्ट करके उद्योग जगत के लोगों को आगे आने का अवसर मिले और आप उसको और आगे बढ़ा सकें। हम लगातार वो कदम उठा रहे हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिले। लोग चर्चा करते थे कि 1991 की रिफॉर्म्स बढ़ी, लेकिन आज देश भर के लोगों को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि 1991 से बड़ी रिफॉर्म्स कभी हुई तो कोविड के टाइम पे नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, जो पावर सेक्टर में भी है, कोल में भी है, माइनिंग में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, डिफेंस प्रोडक्शन में भी है, स्पेस में भी है। कभी एग्रीकल्चर पर भी इतनी बड़ी रिफॉर्म्स नहीं हुई। आज जो विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, वो हजम ही नहीं कर पा रहे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो वो 20-30 साल नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए कदम उठाए हैं और हम देश के किसानों की आय को दुगना करेंगे। हम दुनिया भर से कोयला लाते हैं,
अपने देश भर में माइनिंग क्यों नहीं ज्यादा बढ़ सकती थी? उस कैपेसिटी को हमने नॉन कैप्टिव और कैप्टिव दोनों के लिए खोला, चाहे कोल का हो या माइंस एंड मिनरल्स का हो। हम दुनिया भर का सबसे बड़े इंपोर्ट आयात करने वाला देश थे। किसके? हथियारों की। 70 सालों में किसी सरकार ने क्यों नहीं किया कि हिंदुस्तान में हथियार बने? आज HAL की ऑर्डर बुक देखिए, बाकी कंपनीज की 110 से ज्यादा आइटम्स डिफेंस प्रोडक्शन आज हिंदुस्तान में होंगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसमें दम था कि हम हिंदुस्तान में अपने डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे। अरे यूपीए की सरकार के समय तो 1.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद पाए 10 साल में। हमने 2 साल में खरीद के फौज को वो भी दी। 36 राफेल विमान भी खरीदे, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हो या बाकी हो, वो भी हम अपने देश में, और हेलीकॉप्टर्स यहां पर बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव हिंदुस्तान की सोच में आया है। और इस बजट के माध्यम से भी हमने जो थीम रखी है, अगर सशक्त भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत से ही सशक्त भारत की ओर हम आगे बढ़कर जा सकते हैं। और इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ देखने के लिए कदम उठाए गए। मैं व्यापार जगत के, उद्यमी जगत के अपने भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप एक कदम आगे चलिए, हम आपके साथ 4 कदम आगे चलेंगे। और एक बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, क्योंकि बंदी संजय कुमार जी ने यहां पर उदाहरण दिया इंश्योरेंस सेक्टर के ट्रेड यूनियंस का। चाहे उद्यमी हो, चाहे वो लघु उद्योग भारती के माध्यम से आए या किसी भी एसोसिएशन के माध्यम से आए, या आप डायरेक्टली भी आए, नॉर्थ ब्लॉक यानी कि वित्त मंत्रालय में मेरे दफ्तर का दरवाजा आपके लिए सदा खुला है, अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और पिछले 10-11 महीनों में भी, जब से कोविड-19 आया, मैंने बंदी संजय कुमार जी, किशन रेड्डी जी हो, इन्होंने जब भी मुझे कहा कि तेलंगाना की किसी भी एसोसिएशन से बात करनी है, हम डिजिटली भी उनसे जुड़े, आप सबकी बात को सुना। अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है तो आपके सामने व्यक्तिगत रूप से आकर भी अपनी बात यहां पर हम लोग रख पा रहे हैं। और ये कोई अंतिम समय नहीं है। जैसे बजट सत्र पूरा होगा, हम एक बार फिर कार्यक्रम बनाएंगे ताकि और आपके साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत हो सके। ये जो टेक्सटाइल पार्क्स हमने 7 नए लेकर आ रहे हैं मित्र के नाम से, प्लग एंड प्ले मॉडल पे, कि किस राज्य में कितने बड़ी सुविधा बनाकर दी जा सकती है। द कंपनीज कैन कम एंड स्टार्ट देयर ऑपरेशन डायरेक्टली। दे विल बी गिवन ह्यूज शेड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे कैन कम and install their machinery and can start their operations and can export or can sell in India also. Those kind of facilities we're going to come out with. We are going to come out with the mobile device, medical devices and diagnostic park. Those 4 parks will be coming so that India can have make in India medical devices and diagnostics. At the same time, we will be coming out with 3 huge bulk drug parks, pharma parks, and we are looking at an investment to the tune of 1 lakh crore rupees in those 3 parks. This will create ample job opportunities in bulk drug pharma parks, medical device and diagnostic centers, and the textile parks also. Apart than that, Government of India has allocated a budget of 1,97,000 crore rupees for the production link incentive schemes. Now, which are the if you look at India, India was nowhere as far as the mobile manufacturing was concerned. आज से 5 साल पहले हमारे यहां पर केवल 2 फैक्ट्रीज थी। कोविड के टाइम पर भी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देखिए और सरकार की नीतियां देखिए कि एप्पल जैसी कंपनी के 3 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान में लगे हैं। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल
और चार्जर मैन्युफैक्चरर बने, लेकिन नंबर 1 बनना है, अलग अलग क्षेत्र में बनना है। इसलिए टारगेट स्कीम्स के साथ आ रहे हैं। सेगमेंट्स को चुना इसलिए गया है कि किसके सेगमेंट में आगे बढ़ना है। मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं, हम लोग 20,000 बसेस की खरीद करने जा रहे हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी मिलेगी शहरों के अंदर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलेगा। स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी तो जो भी व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी से मुक्ति पाना चाहता हो, प्रदूषण होता हो, तो प्रदूषण मुक्त भी होंगे, ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी भी ले सकते हो, और सरकार की ओर से मदद भी आपको स्क्रैपेज पॉलिसी में मिलेगी। तो इंडस्ट्री का भी भला होगा और कंज्यूमर का भी भला होगा और देश का पर्यावरण को भी सुधार होगा। अब बोलने के लिए तो मुझे आप जितनी देर कहेंगे मैं बोल सकता हूं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिन पर मुझे लगता है तेलंगाना को, आंध्रा को बहुत कुछ करना चाहिए। चाहे एनआरआईज की मदद से हो, लोकल एंटरप्रेन्योर्स की मदद से हो। हमारा हिंटरलैंड और पोर्ट, इन दोनों के बीच में, जैसे हम लोग इटारसी से लेकर ये जो नया फ्रेट कॉरिडोर, रेल फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, इसमें तेलंगाना को लाभ कैसे मिले? विजयवाड़ा तक जो बनने वाला तेलंगाना से होकर गुजरेगा, और हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कैसे पोर्ट के पास आए, जॉब क्रिएशन कैसे हो। अभी भी छोटे छोटे देश जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए भारत के लिए चुनौतियां और भी हैं। हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को कहां पर दिक्कत आती है वो भी एक समझना जरूरी। मान लीजिए हायर इंटरेस्ट रेट था, लेकिन 2019 से लेकर आज देखिए बैंक के इंटरेस्ट रेट लगातार कम होते चले जा रहे हैं। पारदर्शी बजट हमने इसलिए रखा कि पहले पुरानी सरकारों में तो ये भी होता था, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट या जो बाकी डिपॉजिट आते थे उसको एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज में अलग अलग तरह से दिखाया जाता था। इस बार के बजट में आप देखेंगे जो भी है, फूड सब्सिडी भी बजट में दिखाई गई। फिस्कल डेफिसिट आपको थोड़ा ज्यादा दिख सकता है इस साल के लिए, लेकिन मोदी सरकार को फिस्कल प्रूडेंस के लिए जाना जाता है। मोदी गवर्नमेंट इज नोन फॉर फिस्कल प्रूडेंस because during the UPA time fiscal deficit was at 5.6%. We brought it down to 3.4% due to the unforeseen circumstances. Last year we have to borrow more and spend more, but we have shown the glide path for the next 5 years and how we are going to do the fiscal consolidation and achieve the target and bring it down to 4 and less than 4% in the next 4 years, and also at the same time make India Atmanirbhar Bharat and a $5 trillion economy in the next 4 years. That is our target. And that target can only be achieved with collective efforts of trade, industry and the government. We have to work as a team India. जैसे टीम इंडिया, एक युवा टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट हारने के बाद भी सीरीज जीती और बड़े खिलाड़ियों के बावजूद भी जीती, इसलिए जो यहां पर युवा उद्यमी भी बैठे हैं, छोटे उद्यमी भी बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, कोई भी अपने आप को छोटा मत समझिए। कोई छोटा नहीं होता। आजकल तो स्टार्टअप्स को देखिए कब यूनिकॉर्न बन गए। कईयों के परिवार को 40-40, 70-70 साल हो गए काम करते, उनसे पहले उनसे वैल्यूएशन ज्यादा होगी। तो किन सेक्टर्स में ग्रोथ है, कहां इंडिया का पोटेंशियल है, कहां हमारी एडवांटेजेस है, कहां हम रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन मेक इंडिया थ्रू आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी,
a net exporter and also the world's largest skilled workforce should be from India. हमारा आउटपुट भी ज़्यादा आना चाहिए। जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि दूसरे देशों में कितना आउटपुट एक वर्कर का है और हमारे का कितना है, तो उसी के ऊपर सारा निर्भर करता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोग इसमें हम सबका सहयोग करेंगे। मैं इसको तेलंगाना की जो हमने दिया है उसकी घोषणाओं के ऊपर मैं कार्यक्रम को सीमित नहीं करना चाहता, नहीं तो केवल तेलंगाना और आंध्र तक स्पेसिफिक हो जाएगा। आई वॉन्टेड इट टू बी related to industry and to inform you also that if you compare it with the last year budget, our capital expenditure is going to increase by 34.5%. We are going to spend 5.5 lakh crore rupees more this fiscal year 21-22 on the capital expenditure. आप कल्पना कीजिए जिस देश में सरकार ही 5.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च करेगी, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो गिना जाता है वो 2.5 गुना ज्यादा गिना जाता है। हमें उस तरह से तेजी भी करनी पड़ेगी, सरकार को कि पैसा खर्च हो, इंप्लीमेंटेशन पर भी जोर देना पड़ेगा। तो वहीं पर प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी कमर कसनी पड़ेगी कि वो काम कैसे आगे बढ़कर कर सकता है, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। और यही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में, हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में पिछले साल के बजट के मुकाबले 137% हमने वृद्धि की है। यानी कि पिछले साल अगर हमारा जो बजट था उससे बढ़ाकर अब हम 2,23,000 करोड़ रुपया इस साल हमने उसका प्रावधान किया है। पानी साफ सुथरा मिले, जल जीवन मिशन में हर घर को नलके से साफ पानी मिले, क्योंकि 80% बीमारियां पानी के कारण होती हैं। 50,011 करोड़ रुपया हमने उसके लिए भी इसमें मंजूर किया है। बिजली के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि बिजली के क्षेत्र में नई रिफॉर्म्स आ सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये जो हेल्थ सेक्टर में लॉन्च करने जा रहे हैं, 64,180 करोड़ रुपीस उसके लिए हमने अलग से सैंक्शन किया है। सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें काफी एनहांसमेंट भी की है और इससे बड़ा बदलाव भी आएगा। एनसीएलटी के लिए भी हमने ई कोड्स की घोषणा की है और जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड था हमने उसमें भी लिमिट, पहले तो उसको सस्पेंड किया कोविड के टाइम पे, फिर 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की हमने उसकी लिमिट कर दी थी कि किसी भी कंपनी का दिवालियापन होगा, इंसॉल्वेंसी होगी, तो उसको 1 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट कर दी थी। अब हम कोर्ट्स की क्षमता को भी बढ़ाने जा रहे हैं ताकि जल्दी निर्णय उस पर हो सके। इसके अलावा ई कोर्ट्स का प्रावधान भी किया। हमने डीक्रिमिनलाइजेशन जो कंपनीज एक्ट में की थी, क्योंकि यूपीए के सरकार में तो व्यापारी को क्रिमिनल एक्ट ही दे दिया जा रहा है, कंपनीज एक्ट कम था, क्रिमिनल एक्ट ज्यादा लगता था, तो उसके सेक्शन इतने क्रिमिनलिटी से भरे हुए थे। उसको डीक्रिमिनलाइज करने का काम हमने किया और हमने एलएलपी के एक्ट को भी अब डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। ये भी हमारी सरकार ने इसमें घोषणा की है। ये एक बड़ी राहत व्यापार जगत के लोगों को होगी, नहीं तो जो डर सताया जाता था कि जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उससे भी आपको छुटकारा देने का हम लोग काम कर रहे हैं। ज्यादा ना कहता हुआ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि मेरी 5 बजे 5:15 बजे की फ्लाइट थी। अब तो शायद नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे लगा था बंदी संजय कुमार जी कुछ लंबा सा भाषण देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं तो आपका लंबा भाषण सुनने के लिए मैंने अपनी फ्लाइट एक्सटेंड करवाई थी और लंबा बोलने का अवसर मुझे मिल गया। वहीं पर महिलाओं के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है। चाहे 8 करोड़ महिलाओं को हमने पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना में मुफ्त में सिलेंडर दिए, अब 1 करोड़ और महिलाओं को भी रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में नरेंद्र मोदी की सरकार देगी। ये भी हमने करने का काम किया है। नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम कर सके, पर्याप्त सुरक्षा उनके लिए हो,
इसका प्रावधान भी मोदी सरकार करने जा रही है, उसमें भी कानून में बदलाव ला रही है। कुछ विपक्ष ने कहा कि डिफेंस का बजट कम किया। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि डिफेंस के बजट में भी हमने 7.4% का ज्यादा एलोकेशन किया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल इक्विपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, उसके आउटले के लिए 20% की वृद्धि है, 20% की। क्योंकि इस देश में कोई एक झूठा ट्वीट कर दे, सोशल मीडिया पे डाल दे, कुछ कर दे, लोग उसी को शेयर करते रहते हैं। मैं अभी कई चैनल्स पे देख रहा था, कोई दिखा रहा था कि जी बजट एलोकेशन कम कर दी डिफेंस के लिए। 20% एलोकेशन ज्यादा है। किसके लिए? कैपिटल इक्विपमेंट आउटले के लिए डिफेंस के। फिर किसी ने कहा कि मोदी कानून में किसानों की जमीन चले जाएगी। ये पहली बार प्रावधान किया गया कि आप किसान की जमीन केवल फसल की बुआई और कटाई के लिए ले सकते हैं। आप उस पर केवल फसल पैदा कर सकते हैं और काट सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो हटाना पड़ेगा, नहीं हटाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसान का हो जाएगा और जमीन का मालिकाना हक भी केवल किसान का ही रहेगा। फिर किसी ने कहा किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी। हमने प्रावधान किया कि किसान को 3 दिन के अंदर पेमेंट मिलेगी। इंडस्ट्री वालों से मैं पूछता हूं, एमएसएमई से, आप में से किसी को 3 दिन के अंदर पेमेंट मिलती है? आपको 70-80 दिन तक नहीं मिलती। हमने किसान के लिए 3 दिन का प्रावधान किया है। कोई नहीं पेमेंट करता तो कहा एसडीएम 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेगा, किसान को पेमेंट मिलनी चाहिए। फिर किसान केवल एक मंडी तक माल बेच सकता था अपने राज्य की, अपने जिले के अंदर। हमने कहा आप मंडी में भी बेचो, मंडी में बेचना तो मंडी में बेचो, लेकिन मंडी से बाहर भी बेचना है तो उसमें भी किसान को आजादी किसी ने दी तो 70 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी। ये जितने फैक्ट्री वाले, उद्योग वाले, ट्रेडर, बिजनेसमैन मेरे सामने बैठे हैं, आप देश के किसी भी कोने में अपना सामान बेच सकते हो, लेकिन देश के किसान को यह आजादी नहीं थी कि देश के किसी कोने में बेचे। यह आजादी मोदी सरकार ने दी, लेकिन उस पर भी भ्रम फैलाया जाता है। अब एक भ्रम और मीडिया के माध्यम से, क्योंकि विपक्ष को काम है झूठ बोलने का, कुछ लोगों को, उन्होंने कहा जी मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा दिया तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के कारण 1 पैसे का दाम भी पेट्रोल डीजल का नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि हमने एक्साइज ड्यूटी को कम किया और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को लगाया। दाम कम ही हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। इसी तरह से जो कस्टम के कुछ प्रोडक्ट्स जहां पे कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसमें भी कस्टम ड्यूटी को कम करके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया, ताकि किसानों के लिए वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और बाकी सुविधाएं बनाकर दी जा सके। ये हमने अपनी ओर से करने का प्रयास किया है। मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष के लोगों को, अगर आजाद हिंदुस्तान में 70 साल में किसी सरकार ने मोदी सरकार के मुकाबले 50% भी कदम किसानों के हित में उठाए होंगे तो जो वो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन किसान के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलानी चाहिए। आप अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते किसान के नाम पर। जो लोग विदेशों में बैठे हैं वो क्या अजीबोगरीब नारे वहां पर देकर देश के अंदर दंगे फैलाना चाहते हैं? वो विदेशों में तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं, लेकिन देश के किसान को भ्रम फैलाकर, गुमराह करके आंदोलन करने पर मजबूर करते हैं और झूठ बोलकर करते हैं। देश के किसान की अगर आय को दुगना करने का किसी सरकार ने संकल्प लिया और खुले तौर पर कहा कि हम देश के किसान की आय को दुगना करेंगे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुले मन से कहा है। किसी में ताकत नहीं थी ये कहने की। और आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी हैड द करेज टू डू सो। ही हैज सेट अ टारगेट
and we have the timeline and we know the trajectory also how to achieve the target, and we are going to achieve our target and make India $5 trillion economy. किसी और के मन में भ्रम होता होगा कि क्या ये अपना टारगेट अचीव कर भी पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कोविड महामारी के समय भी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक $48 बिलियन से ज्यादा FDI आई तो दुनिया के किसी देश में नहीं आई होगी, भारत में आई है। $590 बिलियन से ज्यादा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। ये आज तक कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। जितना हमने कर्ज लिया है उससे ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, नेट सरप्लस है। ये भारत कैसे हुआ? हमारा $554 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है और फॉरेक्स रिजर्व्स $590 बिलियन के। और कोविड के टाइम पर भी पिछले एक साल में देखा जाए तो $119 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स में बढ़ोतरी हुई है। ये मोदी सरकार के कारण। हम 118 लाख करोड़ रुपया, अगर 1,18,000 करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च करने जा रहे हैं, 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे पर खर्च करने जा रहे हैं, 50,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन पर, 2,23,000 करोड़ रुपया हम स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं, 73,000 करोड़ मनरेगा पर, 65,000 करोड़ रुपये PM किसान पर, 20,000 करोड़ रुपया अगर हम DFI बनाने पर देने जा रहे हैं, 20,000 बसें खरीदने जा रहे हैं, 10,000 करोड़ माइक्रो इरिगेशन पर खर्च करने जा रहे हैं। तो हर सेक्टर का हमने ध्यान रख के आगे बढ़ने का काम किया है। वहीं पर 1,97,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आप जैसे मैन्युफैक्चरर को भी देने जा रहे हैं। और दुनिया का सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। और आपके टैक्स भी, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम करके 22% मोदी सरकार ने पिछले साल किया। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जब भारत की आय भविष्य के टाइम पे बढ़ेगी तब और इसमें और आपको सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन इस आपदा के समय भी आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना किसी ने देखा तो मोदी जी ने देखा है। और हम सबको मिलकर एक सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और मैं समझता हूं तेलंगाना की इस धरती से, हैदराबाद से, आप सबके आशीर्वाद से हम निश्चित तौर पर अपना टारगेट भी पूरा करेंगे और हम भारत को आत्मनिर्भर भारत भी बनाएंगे और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। అందరూ ఉండాలి. దయచేసి వెనకున్న కూర్చోవాలి. కార్యక్రమం కాలేదు. మంత్రి గారి ఫ్లైట్ కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కొంత ఇంటరాక్షన్ సెషన్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటరాక్షన్ సెషన్లో ఒక 3-4 అవకాశం ఉంటుంది. వారు వచ్చి ప్రశ్న పెడితే వారు ఆన్సర్ ఇస్తారు. రెండు కార్డులు యా మీరు ముందు కార్డ్లెస్ వస్తుంది. మీకు పేరు చెప్పండి. క్వశ్చన్ షుడ్ బి క్వశ్చన్, నాట్ స్పీచ్. దయచేసి వెనకాల కూడా చాలా కుర్చీలు పైన కూడా ఉన్నాయి, కొంతమంది పై కూడా పోవచ్చు. ఇంకా 10 నిమిషాలు ఇంకా మీటింగ్ నడుస్తుంది. ఇది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఇంటరాక్షన్ అప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యం గారు, శర్మ గారు इनके पास माइक जा रहा है. या check check hey sir, good evening sir. This is regarding really it's a budget of a great this thing, the way in which it is given, we are all happy with that. But can I ask you a small this TDS provisions, sir? There is it's an excellent provision, but this year a clause is added into that. Whenever the TDS is done, it is normally the government collection is being done by the person who is paying. So with that there is a lot of improvement in the collection also. But this time that is the person who is paying has to collect the tax.
This time there is an addition of the clause regarding if the person is, the SSA has not filed for 2 years, the TDS rate has to be doubled. So it is already a burden on the person who is collecting, but that is the duty of the government done by the person collecting. And by this addition, again another burden has been given to the person collecting the taxes. It's a small. I take this as a suggestion or a feedback from your side. Sir, I'm Hanmal, Chartered Accountant. Sir, India is defamed for more compliance internationally also. Can we reduce the compliance with a single return or single compliance for monthly or yearly for all regulators together? Also, the single statement of accounts also can be made it possible. Yeah, I think it will be useful and also will comfort to entrepreneurs and professionals also. I'm glad that a chartered accountant is telling to cut down the compliance burden. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Reduce. Which is a good thing. We are keen to do so. Yes, sir. And let me request all the professionals who do the taxation part. If you have any specific suggestion how we can help, because we are also looking internally to cut down the compliance burden. The government focus will be entirely on that. And if you have any specific suggestion, I'll be more than happy to receive it through Bande Sanjay Kumarji, or you can send it. Sir, I already forwarded to PM website. Your finance ministry also, it's single accounting guidance. As well also, compliance also, I'll forward. Sir. Just send it to Bande Sanjay Yes, Kumarji and me, yes, so that we can do the internal meetings in the department and with the various other ministries also. You know, it is not only the finance but other requirements also. All regulators. So the Prime Minister is also speaking, has already told the other ministers also to look at how we can cut down the compliance burden. Yes, I totally in agreement with you. Yes, That for our business community, yes, the compliance burden should be reduced. Yes, I totally agree with you. Thank you, sir. Thank you, sir. हेलो, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है. I am a retired bank employee. Our pension updation has not taken place till now. Second thing, you said we are taking care of the health of all the retirees. I request you to pay the premium of the insurance, medical insurance. It will work out to around 300 crores for all the bank retirees throughout the country, so that a pensioner from substaff and clerical, they are getting 5,000, 6,000 to 15,000, whereas the insurance premium is 20,000. They have to pay 3 months premium pension for insurance premium. If it is paid by the government, we will be highly grateful to you. Thank you very much. I think Indian Bankers Association, if I remember clearly, 2 years back, I went for their annual general meeting and I spoke about the fixation of the pay, where they were, negotiating with the bank officers also. And for the pensioner, I think there is a 30% increase recently for the family pension and all, isn't it? Not approved yet, but IBA has recommended, am I right? So once that come through, it is between you and them. I take your point, because if you look at overall, the Pradhan Mantri Modi ji, he started this Ayushman Bharat Yojana, where we cover close to 50 crore people who get the benefit of 5 lakh rupees as an annual assured sum. I'll take this as a suggestion from your side, because that figure you have given, I have to go and check back with the bank authorities again. Yeah, definitely. I'm Devaki Vasudeva Rao, a practicing company secretary and the former chairman of Hyderabad chapter of company secretaries, and contested from the Khammam Lok Sabha on the BJP. Sir, the 2 points which I would like to make. The first thing is company's Fresh Start scheme, which is welcomed by entire industry in this country. But due to the corona, most of the corporates could not use the CFSS scheme. The CFSS scheme has not been
better utilized by the corporates in this country. And a lot of requests has been made to your ministry, but I request, in fact, to look into the CFS scheme again, once again, at least 3 to 6 months. It would be great support for this country. The other thing is we have the GST website, we have the income tax website, which takes a lot of loads even on the 31st December or 31st January. But the Minister of Corporate Affairs website, till date, since the 2013, every time it has a lot of issues in the last couple of days. I bring to your knowledge on December 31st, which is the last date of the CFS scheme and the filing the returns. The tickets raised, there are a lot of issues and till date not resolved, even we are on February 5th. Till date the tickets are not resolved. I don't understand why the GST, which is huge in terms of numbers, it's a huge GST website and the income tax, but MCA site is not able to withstand the load, particularly in the last week. I request to. I think these two sessions are specific to the Ministry of Corporate Affairs. Yes, And- sir. Yeah, You are the heading or I'm taking all these two as feedback from your side. Okay. And we are also coming out with the MCA Registry 21 3.0, which Yes. has been announced during the budget also. So if there is any technical glitches, we will also look into the previous glitches. And the NCLT, which is appreciated by entire country, the one thing is there's a lot of vacancies in the judicial members, sir. Kindly look into it. Because in Hyderabad, all the 3 judicial members have Around 34 members have been selected and the list has been sent for approval. That is one. And second, we are also going to enhance the capacity of few benches where the load is more, as far as the NCLT is concerned. thank you, sir. Thank you. मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल देशपांडे है। जो मुद्रा लोन दे रहे हैं साहब 50,000 दे रहे, 50,000 से ज़्यादा पूछे तो बैंक वाले सता रहे और 30 to 40% भर ले रहे। सपोज 1 लाख रुपए पूछे तो 40% उन्हें भर ले रहे। और ये मुद्रा लोन के लिए बैंकर्स बहुत सता रहे साहब, श्योरिटी पूछ रहे, IT होल्डर श्योरिटी पूछ रहे, एम्प्लॉय श्योरिटी पूछ रहे, प्रॉपर्टी श्योरिटी। मैं पेपर में पढ़ा 6 to 10 लाख तक विदाउट श्योरिटी देते बोलकर प्रधानमंत्री जी और अपने जो स्वर्गीय मिनिस्टर जी, हमने फाइनेंस मिनिस्टर जब उन्होंने बोले सो पेपर कटिंग में मेरे पास है। बैंकर्स इसके बारे में बहुत साता है अरुण जेटली जी। और ये जो अभी फुटपाथ वालों को 10,000 रुपये दे रहे हैं ना साहब, वो 10,000 रुपये कुछ भी बस में होता, वो 50,000 तक बढ़ाना बोल के मैं आपको विनती कर रहा हूँ। देखिए, कई बार अगर आप किसी चाय वाले का, सब्जी वाले का, खोखे वाले का, पटरी वाले का, रड़ी फेड़ी वाले का देखेंगे, उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो बैंक इंटरेस्ट से 5-5 गुना ज्यादा भी पे करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर उनको 10,000 लोन दिया होगा तो उसके हाथ में 9800 रुपीज़ ही देते होंगे, या उसमें से कुछ पैसा पहले दिन ही काट लेते हैं, फिर रोज के रोज ब्याज लेते थे। उस गरीब को ज़्यादा इंटरेस्ट से बचाने के लिए ये 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं कि ताकि वो एक तो डिजिटल पेमेंट करेगा और उसको से फिर रिफंड होता है ऊपर से। अगर आप 2 साल में देखेंगे उसको सारे का सारा इंटरेस्ट फ्री हो जाता है, उसको कुछ नहीं देना पड़ता और उसकी सिविल रेटिंग्स भी बेहतर होगी ताकि भविष्य में वो बैंक से और ज़्यादा पैसा ले सके और अपने व्यापार को भी बढ़ा सके। एक तरीके से उसको सही दिशा में हम लोग लेके जा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से कम इंटरेस्ट रेट की ओर। और ये जो मुद्रा योजना वाला आपने कहा, इस पे अगर आप मुझे कुछ स्पेसिफिक डिटेल भेज पाएंगे कि इस बैंक ब्रांच में फलाने ने की, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साहब आपका ध्यान चाहूंगा मैं, सजा दो हर गलियों को गुलशन से, मेरी सरकार आई है, मेरी सरकार आई है। मेरा जो कारोबार है, मेरा नाम नवीन जैन है, मेरा कारोबार सुख दुख का साथी, यानी कि मैं गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस करता हूँ। मैं ये चाहूँगा खास करके इस तरफ आप थोड़ा सा तवज्जो दें, क्योंकि गहना जो है नारी का खास ये चीज़ है और सोना चांदी हमेशा सुख दुख में हर इंसान को, हर भारतीय को काम आता है। तो सरकार ने तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया, जैसे 12.5% टैक्स था, अब
10% करिए। मैं चाहूँगा और कुछ कम करें ताकि गरीब से गरीब इंसान गहना खरीद सके और वो सुख दुख में उसको काम आ सकता है। धन्यवाद। राकेश, लास्ट क्वेश्चन। राकेश। मंत्री साहब, आपका सर्वप्रथम तेलंगाना की धरती पर सुस्वागतम। मेरा सौभाग्य था कि 4 महीने पहले आपके साथ जूम कॉन्फ्रेंस से उस टाइम माइक्रो एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में जूम कॉन्फ्रेंस हुआ था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उसका। मेरा, क्योंकि मैं पार्टी से भी जुड़ा हूँ स्टेट में और मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी बिजनेसेस सफ़र हुए हैं, तो हम इंटरेस्ट के लिए वेव करने के लिए आपसे निवेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर इजी इंस्टॉलमेंट्स में कर सके तो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफ़ी राहत मिलेगी इससे। धन्यवाद। Last question, Rakesh, and we'll have to wind up because we have to go to some other meetings also. देखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कोविड के टाइम पे भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो हम लेकर आए थे, उसमें भी 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल बगैर कोलेटरल बगैर गारंटी के ही दिया गया, और अब तक 2 लाख करोड़ से ज़्यादा उसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ के लगभग पैसा दे चुके हैं, सैंक्शन कर चुके हैं उसमें। और भी भविष्य में अगर आपको लगता है कोई और योजना हो सकती तो आप उसका दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन। Namaste, Anurag ji. Pradhan Mantri Awas Yojana scheme is a wonderful scheme which is helping lakhs of poor and downtrodden. Even our neighboring states like Andhra Pradesh and Karnataka, lakhs of people are getting benefited. But in the name of double bedroom scheme, the government of Telangana is actually cheating the people of Telangana, because from last 7 years, not even 10,000 people got houses. So can the central government make a provision where it can directly benefit the poor and the downtrodden? Because during the UPA government, there was a scheme which was actually directly benefiting, whereas our government is going through the state governments. So there is a demand, and a lot of people are also asking our leaders whether it can directly benefit the poor. आपका प्रश्न में गरीब के लिए दर्द भी छिपा हुआ है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, इसके लिए इसका राजनीतिक रूप दिया जाएगा। लेकिन मैं इस पर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, मोदी जी साफ मन के साथ गरीब की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गरीब के पास पक्का मकान हो, 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। शौचालय हमने देश के हर गरीब को देने का काम किया। रसोई गैस का सिलेंडर 8 करोड़ परिवारों को दे दिया। बैंक खाता हर परिवार का खोल दिया। राशन हर परिवार को जो गरीब है उसको देते हैं। बिजली का कनेक्शन हर परिवार को पहुंचा दिया। 4 LED के बल्ब हर परिवार को दे दिए। तो जो कमियां भी गरीब अमीर के अंदर खाई होती थी, उस खाई को कम करने का काम मोदी सरकार कर रही है। अगर तेलंगाना राज्य में राज्य की सरकार अगर किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही या बेहतर करना चाहती लेकिन नहीं कर पा रही है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में राज्यों को साथ में लेकर चला जाता है। उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। राज्य की जनता के पास पर्याप्त अवसर होते हैं समय समय पर अपना पक्ष रखने के, तो सरकार अगर हित में काम नहीं करती तो जनता सब देखती है। We have other. Kindly, we are winding up the question answer session. Sir, one last question. You can give in writing. We can we'll. Sir, one last question Yeah, from the tell me. education industry. Yes. Yeah, tell me.
Sir, one last question from the education industry, first sir. ladies, and then you ask, then we'll close it. Yes. Okay, thank you. Thank you for allowing me this question, and thank you for the wonderful budget. I would say a growth-oriented budget. I am an educator, and I am coming from this education industry, and I've been, I should say, I'm proud of being part of the process of development of this NEP in a very small way, I would say. And I'm very much impressed, and I'm also sort of following the implementation process. Now, as part of the National Education Policy, it was decided that 6% of the GDP would be spent on education. Now, after the NEP was released last year, this is the first budget that we have seen, and we have seen that about 2.8% of the GDP was actually allocated. Now, my question is this 6% staggered over the 10-year period, or is it going to be there practically every year? Ma'am, most of the things are for the annual allocation, and certain projects which are spread over 3 or 5 years back. It depends from various scheme to schemes. Yeah, last one. Yes. Sir, last question, sir. Yeah, last one. Yeah, tell me. Sir. बाकी लोग कह रहे हैं स्लैब्स को कम किया जाए, इन्होंने एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दी 4%. Sir, good evening, sir. Sir, last question from the farming side. Myself, Sampat Kumar, sir. I'm from Karimnagar. So, I'm in the industry of agriculture machinery supply, sir. I'm running a YouTube channel from the past 10 years, sir. I'm in the industry from the past 13 years. So, here from the huge areas of Telugu states, I got inquiries from farmers, sir, for PM EGP scheme, Pradhan Mantri Employment Rozgar Yojana scheme. पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, एक DPR बना के उनको देने के लिए कर रहे हैं सर, विद इन 10 लाख लिमिट के लिए. ये 10 लाख की सब्सिडी जो आते हैं ना, उसके लिए उन लोग क्या कर रहे हैं उसको मालूम नहीं है. CA के पास जा रहे हैं, उन लोग पहली शुरुआत में 50,000 40,000 की चार्जेस ले रहे सर. उसके बाद उसको डिटेल में मिल रहा नहीं मिल रहा वो प्रॉब्लम हो रही सर. अभी मेरा यहाँ पे क्या है, आपसे विनती क्या है, जो रियल टाइम फार्मिंग में है, आप मैं भी बीजेपी पार्टी का हूँ. पिछले 16-17 साल से मैं यही काम में हूँ. संजना को भी मालूम है मेरे बारे में. यहाँ पे क्या है, मेरी आपसे विनती क्या है, जो रियल टाइम फार्मर है इसको डबल द इनकम बोल रहे ना सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने. उसको फूड प्रोसेसिंग में नया जो आने की चाहते हैं विद इन 5 लाख के लिए, उसको DPR हटा दो सर, क्योंकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उन्हें 40,000 50,000 CA साहब को देना पड़ रहा, और ये 50,000 देने के बाद भी उनको प्रोजेक्ट सैंक्शन होता नहीं होता मालूम नहीं है. इसीलिए सब लोग, क्योंकि अपना एरिया में भी डर के नया इंडस्ट्री में आने के लिए थोड़ा डर रहे सर. मेन प्रॉब्लम हुई है ये 40,000 50,000 की जो प्रॉब्लम है, सब मेरे पास कॉल कर रहे सर. अब तक मेरा जो वेबसाइट है, मेरा यूट्यूब चैनल है, 30,000 से ऊपर आदमी देखे वाला सर. मेरे हर दिन में 50 कॉल्स आते सर. सबका यही प्रॉब्लम है. अभी CA साहब को मैं 25,000 दे रहा हूँ, मगर उनका डिटेल आ रहा नहीं. यहाँ पे भी बहुत आदमी बैठे वाला है सर. सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो फार्मिंग रिलेटेड आदमी आते हैं ना, उन लोगों की उन्नति के लिए आपका भी मदद होना जरूरी है सर. थैंक यू. देखिए, मैं चाहता हूँ इसके बाद आप और CS का एक राउंड टेबल हो जाए.
किसी का समाधान तो निकाल के जाते हैं यहाँ से, लेकिन इस पे एक और हो सकता है कि जिनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एक्सेप्ट हुई हैं उनको लेकर भी आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दे सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती कैसे है, क्या प्रावधान थे, ताकि वो लोग लंबा समय लेने के बजाय उसमें कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं लीगल बैकग्राउंड के साथ जो बहुत सारे केसेस में मुफ्त में अपनी सलाह भी देते हैं। बहुत सारे सीएस भी ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर के लिए अपने ओर से 4 लोग इकट्ठे मिलके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। आप आज भी जाओगे तो 4 लोग कम से कम आपको बोलेंगे कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। आप एक बार हाथ तो बढ़ाइए, देखिए कम से कम 4 लोग तो आ जाओ। 4 लोग हाथ खड़ा कौन कौन करेंगे? देखिए मुफ्त में कर लेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। जोरदार तालियां इनके लिए मुफ्त में करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी इस समय ये समाप्त हो गया है क्वेश्चन आंसर्स का। सबसे पहले मैं आप एक मिनट, क्योंकि सीए को पता है पैसे आपसे नहीं मिलने, कहीं और से मिलने हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर होने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ अनुराग जी। आपने बड़ी अच्छी तरह से हमारे बजट की उपलब्धियाँ जनता के लिए जो है वो आपने बताया, और ख़ासकर अभी मीटिंग आई बोले प्लीज़ जानते हैं कुछ, और ख़ासकर आपने किसानों के बारे में जो बात बताया। आज हमारे देश में विपक्ष जो है किसान को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन हमारा तेलंगाना का किसान गुमराह नहीं हुआ है। मेदक डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे मुख्यमंत्री का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कुछ किसान आए हुए हैं, वो आपका सम्मान करना चाहते हैं। ఎవరైనా మీరు పిలిచినప్పుడు మీరు రండి, దయచేసి అందరు స్టేజ్ మీద రాకండి బాగా, మీరు కూడా మీరు పిలిచినప్పుడు రండి ప్లీజ్, దయచేసి ఎవరు నేను చెప్తాను రండి. అదే మీరండి. అయిపోతుంది. అసోసియేట్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ వాళ్ళు కూడా మన జేసీఐ అందరూ కూడా ముందు లైన్లో